हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यूज प्लस 65 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर एंड द आंसर इज क्लोथ। इसके जो भी ऑप्शन है वो आप खुद पढ़ना, स्क्रीनशॉट्स निकालना। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Galebrian started in 1834 in Prussia refers to a and the answer is custom union। इसका एक और क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what do the saints, angels and Christ symbolize in the Ethiopian vision and the answer is fraternity among nations, means nations के बीच में भाईचारे के बारे में ये वहाँ पर उस विजन में है। Now question number fourth, who were the Junkers and the answer is large landowners। Question number 5, which treaty recognized Greece as an independent nation and the answer is Treaty of Constantinople 1832। Question number 6, by which of the following treaties was the United Kingdom of Great Britain formed and the answer is Act of Union। Question number 7, which of the following groups of power collectively defeated Napoleon and the answer is option C, Austria, Prussia, Russia, Britain। Question number 8, Romanticism refers to a and the answer is option A, cultural movement। Now question number 9, who was Frederick Sorio and the answer is a painter। Now question number 10, which of the following is true with reference to Romanticism and the answer is option C, cultural movement। Now question number 11, What was the basic philosophy of the conservatives? जो conservatives हैं उनकी basic philosophy क्या होती है, तो किस पर वो ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं? ऑप्शन डी, they stress the importance of tradition and established institution and customs। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालते हैं पुराने ट्रेडिशंस पर जो कल चले आ रहे हैं एंड साथ में पहले के जो इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स हैं उन पर ज़्यादा जोर डालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, who was Count Cavour? So the answer is the Chief Minister of Italy। Now question number 13th, which one of the following type of government was functioning in France before the revolution of 1789? 1789 की revolution से पहले किस तरह की गवर्नमेंट थी फ्रांस में? The answer is monarchy, option number D। Now question number 14, which of the following state lead the unification of Germany? So the answer is Prussia। Question number 15, who hosted the Congress of Vienna in 1815? किसने hosted की थी, मीन्स किसने वहाँ पर उसको मेजबानी दी थी? The answer is Duke Metternich। Question number 16, which of the following countries is considered as the cradle of European civilization and the answer is Greece। Question number 17, what was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? So main objective क्या था? To undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War। जो नेपोलियनिक वार के टाइम पर जो चेंजेस आए थे उनको वापस उसी फॉर्म में लाना जैसे वो पहले थे, चेंजेस को रिवर्स कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग ए सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एंड इनकी जो करेक्ट नेशनलिटी है वो कौन सी है? स्विस। Now question number 19, at which of the following places was the Frankfurt Assembly convened? So कहाँ पर हुई थी फ्रैंकफर्ट असेंबली? At the Church of Saint Penelli। Now question number 20, pick out the correct definition to define the term plebiscite। So आप इसका जितना भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट निकालना, मैं इसका डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ। Option number D, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal। Means direct vote का कहा जाता है उस जगह के जितने भी लोग हैं कि वो किसी भी proposal को या तो accept करें या फिर उसको पूरी तरीके से reject कर दें। Now question number 22, the aim of Galebrian is to wind the Germans economically into a nation। Who wrote these words? ये जो लाइन है वो किसने दी है? आंसर है फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Tübingen इन जर्मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नेम द किंग्स
who had been restored to power after Vienna Congress by the conservatives. तो conservatives ने किस राजा को या फिर राज्य को वापस दे दिया था वियना कांग्रेस में? Who had been restored the power after Vienna Congress by the conservatives, and the answer is Bourbon kings. Now question number 24, name the secret societies founded by the Jus Mazzini, and the answer is Young Italy in Marseilles and Young Europe in Britain. Now question number 25, potatoes were not known to people in Asia and Europe till the discovery of which great island? And the answer is Ireland. Now the next question, question number 26, Ernst Renan believed that the existence of nations is necessarily because, so इनके हिसाब से नेशन का होना क्यों जरूरी है? एंड द आंसर इज इट एंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स. सो ये अगर नेशन रहेगा तो वो सभी की आज़ादी के बारे में एक तरीके से भरोसा दिलाएगा. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कांग्रेस ऑफ 1915? एंड द आंसर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस वाज to undoing most of the changes that had come about in the Europe during the Napoleonic War. आंसर पहले भी आया था. So question number 28, what was the concept of modern state? And the answer is centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. Means modern states का मतलब क्या है? centralized power हो, means एक government हो जो कि exercise sovereign control means उस country के अपने ही लोग वहाँ पर रूल करें ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, और उस जगह की जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियरली डिफाइन हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजली नोन एज. तो सिविल कोड को क्या बोला जाता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियनिक कोड. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? And the answer is regions under French control, option number C. Now question number 31, when was the customs union of or Jolavrian founded? तो कब था जे? 1834. Now question number 32, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. Against whom the industrial workers, artisans and peasants revolted in 1848 Europe? तो किसके खिलाफ था? मोनार्की के खिलाफ. Now question number 35, which of the following is not a feature or belief of conservatism? कंजर्वेटिज्म की फीचर कौन सी नहीं है या फिर बिलीफ कौन सा नहीं है? ऑप्शन आप पढ़ना स्क्रीनशॉट निकाल कर या फिर वीडियो को पॉज करके. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव्स प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज एंड वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन मोनार्की. तो ये जो बिलीफ था वो कंजर्वेटिव्स का नहीं था कि वो वापस रेवोल्यूशन से पहले वाली सोसाइटी चाहते थे या फिर मॉडर्नाइजेशन के आइडिया के अपोज करते थे ताकि मोनार्की स्ट्रेंथ हो. दरअसल कंजर्वेटिव्स भी नए तरह के थोड़ा जो चल रहा था स्टेट फॉर्मेशन, नेशन फॉर्मेशन, उसको सपोर्ट कर रहे थे बस ट्रेडिशंस को फॉलो करने के साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हु हैड होस्टेड द मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर एट वियना इन 1815? एंड द आंसर इज द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. Question number 37, why and when Mazzini was sent to exile? And the answer is Mazzini was sent to exile for attempting a revolution in 1831. Exile मतलब होता है देश निकाला, और Mazzini को देश निकाला दे दिया गया था क्योंकि उसने एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया था, उसमें शामिल हुआ था और शुरुआत की थी 1831 में. Now question number 38, name the Irish Catholic who revolted against the British domination. तो आयरिश कैथोलिक कौन है? The answer is Wolfe Tone. Now the next question, question number 39, sorry directly 41 आ गया. The Treaty of recognized Greece as an independent nation, and the answer is Constantinople 1832. ये आपका फर्स्ट भी आया था. Now question number 42, write any one statement regarding the doctrine of liberal nationalism, and the answer is it stood for freedom of individual. मीन्स जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को शो करता है. फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल, सभी की इक्वलिटी के लिए बिफोर लॉ, कानून के सामने. एंड इट एम्फसाइज्ड
गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, और जोर डालता है कि जो गवर्नमेंट हो वो वोटिंग के थ्रू आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ इटली? सो फर्स्ट किंग ऑफ इटली कौन था? विक्टर एम्यूनुअल सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? एंड द आंसर इज ड्यूक मैटरनिक, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, who said true German culture is to be discovered among common people? So who said? The answer is Johann Gottfried Herder. Question number 46, who described the Italian revolutionary nationalist Mazzini as the most dangerous enemy of our social order? तो किसने डिस्क्राइब किया था कि मज़नी सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी है? द आंसर इज ड्यूक मैटरनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, who was Count Cabur? एंड द आंसर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। पहले भी आ चुका है जो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या हुआ था पोलैंड का आफ्टर 18th सेंचुरी, आफ्टर 18th सेंचुरी के अंत में? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड वाज पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। उसका पार्टीशन कर दिया गया था 18th सेंचुरी के एंड में बाय 3 ग्रेट पावर्स, जो उस समय 3 बड़े पावर्स थे उनके बीच में, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द गाइडिंग फोर्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड इन 1707? एंड द आंसर इज द इंग्लिश पार्लियामेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, नेम द एरिया विच वाज रूल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर? एंड द आंसर इज ऑस्ट्रिया हंगरी। Now question number 51, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in? तो इसका एंड कैसे हुआ था? प्रूशियन विक्ट्री, प्रूशिया जो थी वो जीत गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 52, when was the Frankfurt Parliament held? And the answer is in 1848. Now question number 53, who were the architects of the unification of Germany? The Prussian Chancellor Bismarck and the Prussian King William I. Now question number 54, explain the concept of national state? And the answer is, most of its citizens developed a common identity, they shared history, these commonness came as a result of great struggle by the leaders and the common people. मीन्स अगर हम बात करें नेशनल स्टेट की तो वो क्या है? ज़्यादातर जो सिटीजन्स होते हैं वो एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं, दे शेयर्ड हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री एक शेयर्ड में होती है। मीन्स जैसे हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, हमारी सबकी कॉमन हिस्ट्री है। दीज कॉमननेस कैम एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट स्ट्रगल, ये जो कॉमननेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मीन्स स्ट्रगल से आती है बाय द लीडर्स, हमारे नेताओं के द्वारा, एंड द कॉमन पीपल, और जो लोग उस कंट्री के हैं कॉमन पीपल्स उनके द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, एक्सप्लेन द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। तो हमको मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस बताना है जिसकी वजह से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई है फ्रांस के लोगों की। तो इसका आंसर देखिए आप, द आइडियाज ऑफ द फादरलैंड, ला पैट्री एंड ला सिटियोन, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग एम्फसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ नए जो फ्रांस है उसका जो शेयर्ड कल्चर बनता चला गया लोगों के बीच में। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वाज सेट अप, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबोलिश्ड। तो ये सारे काम वहाँ पर हुए ताकि फ्रांस में एक शेयर्ड कल्चर आ सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। Okay, question number 55, explain the measures and practice creating sense of collective identity among the people of France. फ्रांस के लोगों के बीच में अपनी जो आइडेंटिटी है कि वो सारे लोग फ्रांस के हैं, वो कैसे आई? द आइडियाज ऑफ द फादरलैंड, ला पैट्री, ला सिटियोन, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग एम्फसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। सो उनका जो आइडिया था कि वो फादरलैंड, जैसे हमारे इंडिया मदरलैंड कहलाती है, उसी तरह उनका एक जो न्यू फ्रेंच फ्लैग मीन्स उनका एक नया नारा था, फ्लैग आया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, न्यू फ्रेंच फ्लैग, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर सेट अप, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबोलिश्ड। जैसे हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद नया झंडा आया, पहले ही आ गया था,
एंड हमारे राष्ट्रगान वगैरह हैं, उसी तरह सेम फ्रांस में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई लोगों के लिए और उसके थ्रू उन्होंने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को पहचाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। हमें कांग्रेस ऑफ वियना मीन्स वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसके डिसीजंस के बारे में बताना है। द वर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जो वर्बन डायनेस्टी है उसको फ्रांस में वापस लाया गया। ए नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। जो काफ़ी सारे स्टेट्स थे वो बाउंड्रीज, फ्रांस की बाउंड्रीज पर सेट कर दिए गए, मीन्स नए नए स्टेट्स बसा दिए गए। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। जो प्रूशिया है उसको वहाँ की इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ऑस्ट्रिया के पास नॉर्थन इटली आ गया। रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और रशिया जो है उसको पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया, वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, वाई द 1830s वाज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो क्यों ऐसा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, प्राइस राइज, स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट, बैड कंडीशन ऑफ पीसेंट। सारी जो बुरी कंडीशन हो सकती हैं वो 1830s में हुई। पॉपुलेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, माइग्रेशन हुआ, प्राइस राइज, कीमतें बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा, एंड बैड कंडीशन ऑफ पीसेंट्स, और किसानों की कंडीशंस भी खराब हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ऑस्ट्रियन चांसलर डैश होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, एंड द आंसर इज ड्यूक मेटरनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का वो हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिल गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज नोन एज द नेपोलियनिक कोड, पहले ही निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, दैट्स बिकम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, एंड द आंसर इज जर्मेनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। Now question number 63, a large part of the Balkans was under the control of the Dash Empire। जो वल्कन था उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किसके एम्पायर के अंडर में आ गया था? ऑटोमन। Now question number 64, conservative regimes set up in 1815 were democratic in nature। तो इसका ट्रू फॉल में आंसर देना है, एंड द आंसर इज फॉल्स। वो डेमोक्रेटिक नेचर की नहीं थी। सो क्वेश्चन नंबर 65, a direct vote by which all the people of the regions are asked to accept or reject a proposal is known as लेपेट्रे। सो लेपेट्रे आंसर इसका नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉल्स है। इट्स नोन एज प्लेबिसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर्ड टू मोनार्किकल गवर्नमेंट, एंड द आंसर इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation, and the answer is true. Now question number 68, Giuseppe Mazzini formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal, and the answer is true. अपने गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, इसको यंग इटली बोला गया था। So thanks for watching, like, share and subscribe, learning classes